السلام علیکم ساتھیو. ڈیو ٹو انٹرنیٹ ڈسکنیکٹیوٹی آئی کوڈ ناٹ کنٹینیو مائی ویڈیو. میں تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے آج کے اس لائیو کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا آرگیومنٹ پیش کروں. میں نے یہ سوچا تھا کچھ دنوں سے کہ میں اب میاں عبدالقیوم صاحب کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں ڈالوں گا، کوئی ٹپنی نہیں کروں گا، کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے اب سیاست سے ریٹائرمنٹ جو لی ہے. اب اٹس ناٹ ناؤ فروٹفل اینڈ wise also to comment on him. But since his friends and since his comrades, they always start poking, and today I would want 2-3 messages very derogatory, and I may, if you people will also look at them, they are intimidating as well. So I thought that it is better to come on live and talk to them, my argument, and convey them a message that is required and need of an hour. دیکھیں، میرا قیوم صاحب کے ساتھ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، نہ میں ان کے ساتھ کہیں پہ ریلیٹڈ ہوں، میرے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. So there is no fun of having any animosity with him. But question is that Mian Abdul Qayyum Sahab was considered to be the next incumbent to the place of Sayyid Ali Gilani Sahab. He was considered for the highest posts in politics of Jammu and Kashmir. He was given a high regard. And so when a person attains such a character, when a person attains such a position, he becomes a public figure. When he becomes a public figure, then everybody else has a right to question. Even I can be questioned logically, and I never disagree with a person جو مجھے سوال کرے، کیونکہ عوام کا حق بنتا ہے سوال کا. If someone has objection on my political activism and my actions, I should be either rectifying my mistake or convince them that you are wrong, I am right. So this is called politics. This is actually the politics, understanding each other, moving ahead with the corrections and with the with the arguments that convince others, right? دیکھیں، ہم اس جگہ میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ خود سوچ نہیں سکتے، جائے جو آپ کو سکھایا جائے آپ وہی سوچیں، آپ وہی سمجھیں اور وہی بولیں. وہ تو پھر زبردست ایک شعر ہے کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کی جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی تیرے طواف کو جو کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. This is the attitude of our leadership. This used to be also the attitude of the leadership of Jammu and Kashmir. جب بھی کوئی مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو پھر کہا جاتا تھا کہ یہ انڈین انٹیلیجنس کا بندہ ہے، آئی بی کا بندہ ہے. جب بھی کسی ذی حس انسان نے 1990 سے کوئی بات کی، انٹلیکچوئل نے کوئی بات کی، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اسے کہا کہ یہ زبان دراز ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے شان میں، کسی کے خلاف اگر بات کی. یہ ایٹیٹیوڈ اب نہیں چلنے والا، اور میں نے کبھی اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے. تبھی میں کہتا ہوں کہ میں غلام نہیں ہوں، کیونکہ میں نے غلامی اپنے شعور سے، اپنے ذہن سے قبول نہیں کی ہے. دیکھیں، میرا کوئی ڈسپیوٹ قیوم صاحب کے ساتھ نہیں ہے، بٹ چونکہ ان کی پوزیشن ایک پولیٹیکل سپیس میں تھی تو میں کوشچن کرتا تھا. دیکھیں، روز اول سے جو سٹارٹ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر کیا وہ پیپلز کانفرنس کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. انہوں نے الیکشن بھی لڑا، وہاں ہارے بھی. اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کا شیلٹر لے لیا، اور جتنا بھی ہو سکے جماعت اسلامی ایز این آرگنائزیشن کو انہوں نے ٹو دا ہلٹ ابیوز کیا اینڈ مس یوز کیا اینڈ ایکسپلائٹ کیا.
اس کے بعد حزب المجاہدین کے تو وہ ترجمان ہی بنے تھے، اور وہاں پر بھی جب اختلاف ہوا تو پھر کچھ لڑکوں نے ان کو گولی بھی ماری. اس کا مجھے افسوس ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب حالات یہ ہیں، آپ دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آئی نو مسٹر میاں عبد القیوم صاحب ایز اے لائر. 1990 سے میں جب ان کا رول دیکھتا ہوں جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں، صرف دھمکیوں پہ، دباؤ پہ، دوست پہ، تھریٹس پہ پالیٹکس کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ مجھے بتائیں. میرا ایک سوال بنتا ہے میرے دوستوں کو، میرے ویورز کو، میں دیکھنا جو مجھے سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، میرا ایک سوال ہے، کیا ہم ایمانداری سے کوئی سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا ہم شرافت سے کوئی سیاست نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں جو یہاں پہ ملیٹنٹس سے ان کو استعمال کرنا ہے اپنی سیاست کے لیے؟ کیوں ہمیں کسی ایجنسی کو استعمال کرنا ہے اپنے مقاصد کے لیے؟ کیوں ہمیں گنڈے پالنے ہیں جو ہمارے نیریٹو کو امپوز کریں بار ایسوسیشن میں؟ کیوں؟ یہ سوال ہے. اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ میں کرتا رہوں گا. اس کے لیے اگر قیوم صاحب اور ان کے جو حواری ہیں میری جان بھی، مجھے جان سے مروا دیں، مجھے افسوس نہیں ہے. دیکھیں 1990 سے پہلے تو ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ہمیشہ دوست دباؤ اور گنڈا گردی پہ دباتے آئے. آپ پوچھ لیجئے ظفر شاہ صاحب جو ہمارے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، کتنی دفعہ انہیں زبردستی اپنا واپس لینا پڑا. کتنی دفعہ نذیر احمد رونگا صاحب کو 200 دباؤ اور مجبور کیا گیا کہ آپ وڈرا کریں. کتنی دفعہ، کتنا آپ چھپائیں گے لوگوں سے؟ اب تو بات کرنی پڑے گی. آپ یہ بتائیں اب کب تک اس ایلیٹ فورس کو جو جن کا نام لائرز کہا جاتا ہے، اس کو غلام بنا کے پھریں گے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال پوچھنا جائز ہے. چونکہ آج اب قیوم صاحب پالیٹکس میں نہیں ہے، کیونکہ جب سے وہ جیل سے نکلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی. مجھے انٹرسٹ نہیں تھی ان کے اوپر بات کرنے کی، کیونکہ انہوں نے کچھ ایکشنز کی، ان ایکشنز کی بنا پہ میں نے یہ کچھ باتیں کی تھی. ورنہ پورا سال جب وہ جیل میں تھے میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. کیونکہ میری جو سکولنگ ہوئی ہے، میری پالیٹکس جو ہے، میری یہ پالیٹکس کہتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. جب بھی کوئی ظلم میں ہے، مظلوم ہے، میرا کام ہے، ہمارا کام ہونا چاہیے ہم اس کا سپورٹ کریں. میں نے وہی کیا. اور جب وہ جیل کے بعد باہر نکلے، انہوں نے وہی ظلم پھر سے خلاف میں نے پھر سے آواز اٹھائی. اگر غلط کیا آپ مجھے ماریں، مجھے بتائیں، میں معافی مانگوں گا پھر اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے. یہ ہے. اس کے اوپر میں نے ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی، فیس بک پہ کچھ پوسٹرز ڈالی تھی. تو کہا جاتا ہے، اب منظور ڈار صاحب نے بولا کہ آپ نے گالیاں ماری ہے. آپ ایک پوسٹ فیس بک پہ دکھائیں جہاں میں نے قیوم صاحب کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کا استعمال کیا ہو. میں کبھی گالی نہیں مار، میں نے کبھی آج تک کسی کو گالی دی نہیں ہے. ذرا بتا دیں کہ اس کو میں نے گالی دی ہے. کوئی ایک ڈال کے دے دے اور بتا دے کہ آپ نے کسی کو گالی دی ہے. ہاں میرے آرگومنٹس ہیں، ان کو ہوتے میرے آرگومنٹ کا جواب دینا. پھر یہ کہتے ہیں جی یہ ڈیفیمیشن کرتا ہے. آج میں آپ کے مادھیم کے تھرو، آج اس ویڈیو کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں انوائٹ کرتا ہوں قیوم صاحب کو، میں انوائٹ کرتا ہوں منظور ڈار صاحب اور نثار صاحب جو ان کے جونیئر ہیں. انہوں نے آج صبح مجھے گالیاں بھی ماری ہے، دھمکیاں بھی دی ہے. میں ان کو ہی کہتا ہوں آپ آ جائیں، بار رجسٹریشن میں کریں. آپ یہ گھنٹہ گھر کے سٹارٹ کریں. قیوم صاحب کو میرے خلاف جو بولنا ہے میں چپ کر کے سنوں گا. مجھے 5 منٹ کا موقع ملے، میں کچھ کہوں گا ان سے. میرے سوال ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے 1990 سے مذہب کی بنیاد پہ
बार एसोसिएशन को नहीं चलाया? क्या आपने बार एसोसिएशन को गिलानी साहब का टूल नहीं? देखें, आइडियोलॉजी ठीक है, गिलानी साहब की आइडियोलॉजी ठीक हो सकती है, मगर एज अ बार एसोसिएशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रखा। बात ही नहीं हो रही है अब बार एसोसिएशन में, वकला का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जनाब हुर्रियत गाफ की एक्सटेंशन है। 200 दबाव पे अपोजिशन को दबाना कब तक चलेगा? क्यों? 2008 की एजिटेशन, अमरनाथ यात्रा जो नजीर अहमद रोंगा साहब ने स्टार्ट की थी, आप मुझे बताएं फिर कल्मिनेशन किस बात पे हुई? क्या 2008 की जो एजिटेशन है, आवाम जो एलिगेशन गिलानी साहब पे लगाती है कि उन्होंने फेल की, असल में तो कोयूम साहब ने की थी फेल। वही तो जामा मस्जिद में आ गए और उन्होंने कहा कि मसला ओवर हो गया, आप खत्म करो मसला। ये शख्स तो डबल गेम खेल रहा है, खुद को गिलानी साहब के शेल्टर के तले खुद को रखा हुआ है। he has placed himself under the shelter of Gilani Sahab, but he is acting against him, defaming him. He does actions and attributes it to Gilani Sahab. ये देखिए, मैं गिलानी साहब का वकील नहीं हूं, बट मैं उस हल्के को भी एड्रेस करता हूं जो गिलानी साहब के मुरीद हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि कोयूम साहब ने किया क्या। फिर 2010 में बताएं इनका रोल क्या रहा। अगर फेलियर हुआ तो ये तो उसकी कंट्रीब्यूशन में है। अच्छा, 2010 के बाद ये अरेस्ट हो गए, उसके बाद आप देखिए बार एसोसिएशन को कोलैप्स किसने किया? बार एसोसिएशन एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन था, वकला जब लाल चौक में निकलते थे तो एक्शन होती थी। और 2010 के बाद जब इलेक्शंस, जब डिटेंशन हुआ कोयूम साहब के बाद, फिर इन्होंने तो पॉलिटिकली सरेंडर किया, कोई बात ही नहीं की। जो लोग मियां कोयूम साहब को प्यार करते हैं इस बुनियाद पे कि वो बड़े जबरदस्त शख्सियत हैं और तहरीक के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने, सवाल मैं उनसे करता हूं कि 2010 के डिटेंशन के बाद उन्होंने किया क्या? एक दफा मुझे बताएं, जब से कोर्ट प्रीमिस से एक दफा बताएं। अगर कभी बात भी करते थे अंदर दरूने खाना, अंदर कमरे में बात करते थे, और मीडिया को भी वो अंदर नहीं बुलाते थे। ये हकीकत है। उसके बाद जब कोर्ट शिफ्टिंग होगी, कोर्ट शिफ्टिंग में वकला का क्या हाल हुआ, लॉयर्स का क्या हाल हुआ, वकीलों को बताएं ना आप। जो बहुत सारे दोस्त बाहर से देख रहे हैं, बार एसोसिएशन से बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं कोयूम साहब को, उनको पूछना चाहिए वकला से कि उनका हाल क्या हुआ जब शिफ्टिंग होगी फ्रॉम लाल चौक टू मुनव्वराबाद, ये यहाँ पे कमरवारी टोटो ग्राउंड। तो कोई ऑब्जेक्शन उठाई कोयूम साहब ने? कभी वो आए वहां पे? और कोयूम साहब का खुला एक एजेंडा है, उन्होंने कैटेगोरिकली 10 दफा वो पेपर्स में भी आया है कि मेरा वेलफेयर के साथ कुछ नहीं है जी, मैंने खाली आजादी की बात करनी है। ठीक। तीसरा कि जनाब मुझे शहीद होने का शौक है। ठीक। अगर यही आर्गुमेंट उनका मानते हैं, अगर हम समझते हैं कि कोयूम साहब इतने कन्विक्शन के साथ आजादी परस्त हैं और आजादी के साथ हैं, उसके बाद जब 5 अगस्त के बाद उनको अरेस्ट किया गया, आप मुझे बताएं, दुनिया भर के नौजवान यहां पे डिटेंशंस में हैं, दुनिया भर के लोग डिटेंशंस में हैं, खाली कोयूम साहब थे। अब अगर कोयूम साहब मन्नत समाजत करके बाहर सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी इन पे कंडीशंस लगा के रखी थी कि भाई आप कश्मीर नहीं जाएंगे, आप दिल्ली में ही रहेंगे, जो भी करना है, जो भी कंडीशंस, और आप पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, अखबारों में नहीं आएंगे, क्या कोयूम साहब ने नहीं मानी? वो दावे कहां गए कि मुझे शहीद हो जाना है? क्यों माना फिर हिंदुस्तान के ये जो डिक्टेशंस आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने इंपोज कंडीशंस की, क्यों मानी? क्या ये लोगों के बच्चों को वहां पे शहीद करवाना है? क्या ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर देना है और उनको वो गोलियां खाएं? ये मेरा सवाल है। जब आप खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं, अवाम को मत बताएं, छोटे छोटे बच्चों के जिंदगियों के साथ मत खेलें। यही कोयूम साहब है जिसने लगातार बार बार बोला कि जो ये पत्थर चलाने वाले हमारे बच्चे हैं वो इस्लामिक कमांडोज है। ये कोयूम साहब का कहना है। वो शहीद हो गए।
इनके उन स्टेटमेंट्स पे बहुत सारे लड़के हमारे शहीद हो गए यहां पे जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताएं, जब खुद की बारी आई पिटिशंस कर करके, मन्नत समाजत कर करके, अब मुझे मेरी जुबान से वो बातें ना निकलवाएं जो मैं जानता हूं। कहता हूं कुछ बातों पे अब पर्दा ही रहे। औरों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप प्रवोक करते हैं पत्थर चलाने पे, बंदूक उठाने पे, और खुद, मुझे माफ करो, मेरा एक सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल है अवाम से, अपने वकला बरादरी से। जब कयूम साहब बाहर निकले, किसी को पता है वो कब बाहर निकले? किसी को यह पता है कि कयूम साहब फ्री भी है? किसी को पता यह है कि कहीं कयूम साहब कश्मीर में भी आए हैं, उन्होंने कौम से कोई बात की? देखें, ये दो चेहरे वाले लोग जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये दो दो जो 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 चेहरों पे चेहरे रखने वाले होते हैं, वो उनको ऊपर वाला फिर एक्सपोज करके ही रखता है। मेरा इख्तलाफ ये है कयूम साहब से कि आप जी बता कुछ और हो। अवाम में आप कहते हैं जहाद करो, अवाम में आप कहते हैं कि पाकिस्तान नवाजी पे पत्थरबाजी करो, बंदूक चलाओ। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, मगर आप मुझे बताएं आपने खुद क्या किया? आपके खानदान में कोई गया? आपके खानदान में किसी ने पत्थर चलाया? आपके खानदान वाले किधर हैं? ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं जो जेलों में पिस रहे हैं, जेलों में जो अभी डिटेंशन पे डिटेंशन ले रहे हैं। 14-14 साल से हमारे भाई जेलों में हैं, उनका कोई अब नाम भी नहीं लेता। क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए? कौन सी एक्शन कयूम साहब की है उनके हक में, जरा मुझे बताएं। आज के बाद में शायद कयूम साहब के बारे में कभी बात ना करूं जब तक वहां से कोई प्रोवोकेशन ना आए, मगर मैं बबांगे दोहल बिला खौफ तरदीर आपके सामने आपके सामने बात करना चाहता हूं कि अगर कयूम साहब को लगता है कि मैं उन पे कर रहा हूं, डिफेमेशन कर रहा हूं, वो लाल चौक के बीच में घंटा घर के सामने कोई बीट बनाए, वो मैं भी उनके सामने उनके हकाइक पेश करता हूं, फिर देखते हैं अवाम क्या करती है। कितनी देर तक आप अवाम को झूठे प्रोपेगेंडे पे बेवकूफ बनाएंगे? जब वो छूटे, एक डायरेक्शन आई बार काउंसिल से कि तमाम वकला अपनी बार एसोसिएशन के थ्रू डिटेल्स अपनी भेज दें, आपकी लाइसेंस को हमें यहां पे रेगुलराइज करना है। मैंने बेदार साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने बिलाल अहमद वानी साहब से रिक्वेस्ट की, दीजिए आप, हम आपकी जो डिटेल्स है, और फिर इनका रोल देख लीजिए। इन्होंने कहा कि इनकी डिटेल नहीं भेजनी। जो इंसान किसी की रोजी रोटी के बारे में ना सोचे, जो ए पर्सन हु डज नॉट थिंक अबाउट समवन्स लाइवलीहुड, कैरियर, हाउ कैन ही बी अ लीडर? दिस इज माई हम्बल सबमिशन टू द पीपल हु लिसन मी। मंजूर डार साहब, आप ये बता सकते हैं मुझे लिमिट्स में रहें, मगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लिमिट्स में रहें। अब कौम जाग चुकी है, 5 अगस्त के बाद जाग चुकी है। हमारे सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। बार एसोसिएशन को के कर्ताओं में आप थे। 5 अगस्त के बाद आपने क्या किया? बार एसोसिएशन और वकला को यहां पे नाकारा किसने बनाया? आप जिम्मेवार हैं, आप मुजरिम हैं, क्योंकि आप इसीलिए एक मुजरिम का सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि अपने जुर्म को छुपाने के लिए आपको सहारा चाहिए। मैं कहता हूं, जो उस वक्त की जो एग्जेक्टिव थी, जो लीडरशिप थी 5 अगस्त के बाद 12 से, वो मुजरिम है इस जम्मू कश्मीर की कौम के। सॉरी, जब मैं बात करता हूं अब मैं गद्दार हुआ, अब मुझे हिंदुस्तानी एजेंट बोलते हैं,
फिर बोलेंगे कि एजेंसीज की बुनियाद पे बात करते हैं। इनके निसार अहमद के कमेंट देख लीजिए और मंजूर डार से साहब के कमेंट आप देखें मेरी पोस्ट पे परसों जो मैंने किया था, सीधे लगता है कि ये मुझे मरवाएंगे। इनका इंटेंशन है मुझे लिक्विडेशन करवाना है, क्योंकि इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है मेरी सवालात का। ये चाहते हैं कि ये आवाज रुक जाए, क्योंकि ये एक्सपोज होते जा रहे हैं अवाम के सामने, कौम के सामने। जिस कौम के सामने बड़े बड़े तकरीरें करते थे, बड़े बड़े फायदे लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यहां पे हमें आजादी भी देते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी मरवाते हैं, पाकिस्तान को भी बेवकूफ बनाते हैं, हिंदुस्तान को भी बेवकूफ बनाते हैं, कश्मीर के आवाम को लेके ही उनको उनसे उनके और खुद एलीट एक तबके में, और वहां से आप लोगों को धमकियां देते हैं। मंजूर डार साहब, बाबर कादरी आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं खुल्लम खुला चैलेंज आपसे करता हूं, आप चाहें मुझे मरवा सकते हैं, जैसे पास्ट में कोई साहब ने भी मिलिटेंट्स भेजे थे, आप भी भेज लीजिए, कोई मसला नहीं। वो भी समझते हैं, मिलिटेंट्स भी समझते हैं कि आप लोगों ने कौन सा जुल्म किया इस कौम पे। उनको मैदान कारजार में लाके खुद बैठे हो घरों में, अपने बच्चे अमेरिका में हैं, सेटल्ड है, और उनको जहाद का दर्स और पाठ पढ़ाया। वो भी समझते हैं, जाए उनके पास भी, क्योंकि आप तो जाते रहते हैं मेरे, वो भी आपको आपने पांच इस कौम के साथ, आप तो वो हैं जाते थे। मीर साहब जो ट्रेजरर है, उन्होंने जब एक्सपेंडिचर निकाला, ऑडिट निकाला, फिर पे कितना खर्चा है आपका, पे कितना खर्चा दिखाया, आपने ट्रैवल पे कितना खर्चा दिखाया, लाखों का आपने कौमी असासा। एक वेलफेयर स्कीम मुझे दिखाएं जो वकला के लिए आपने की। आपने तो वकला को भीख मांगने पे अब यू हैव लिटरली मेड अस टू बैक बिफोर द पीपल नाउ। हमारी इज्जत नहीं रही, ना अवाम में हमारी इज्जत है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इज्जत है, ना जजेस हमारी कोई इज्जत करते हैं। ये आपके करतूत हैं। खुद अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए स्टेट के पास भी जाते हो, जजेस के पास भी जाते हो, मगर जब वेलफेयर की बात आती है, जब वकला की बात आती है, तब जाते हो, कहते हो नहीं हमें आजादी पहले लानी है, बाद में ये बातें करनी है। ये आपका कॉल ऑफ फेल में तजाद है। अब लास्ट पे इतना ही कहूंगा कि जिस भी मेरे भाई को, कौम के फर्द को ये लगे कि मैंने गलत किया है कोयूम साहब के खिलाफ, ऑर्गेनाइज करो कोई प्रोग्राम, कोयूम साहब को भी सामने लाओ, मुझे भी सामने लाओ। मैं आपको वसूकन ये कहता हूं, वो नहीं आएंगे। अब अगर आगे, अगर मुझ पे कोई गलती चढ़ी, मैं तमाम कौम से माफी मांगूंगा। मैं इगोइस्ट नहीं हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्त दबाव और दहशत की बुनियाद पे कैसे सियासत की है इन लोगों ने। मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्सनल बेनिफिट्स कैसे लिए हैं। को दिखाऊंगा कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने वाला कोई इंसाफ है। जो रेजोल्यूशन इन्होंने पास की थी कि हम किसी लॉयर को जो जम्मू, क्योंकि जो बार प्रेसिडेंट जम्मू है, उन्होंने मुझे परसों कहा कि आप लोगों ने ये रेजोल्यूशन पहले लाई, फिर हमने लाई। तब आप कहते हैं कौमी आजादी की बात, जेती की बात आप करते हैं। आपने तो जम्मू को तो खुद ही आपने आइसोलेट किया है। एक तरफ से आप जम्मू को साथ नहीं चलाना चाहते, दूसरी तरफ कहते हैं कि जम्मू वाले हमारे साथ नहीं है। कैसे साथ देंगे जब आप अपने कश्मीरियों पे इतना जुल्म करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, गेन्स के लिए? तो जम्मू वाले आप पे भरोसा क्यों करें? यह आपकी सियासत है जिसने इस रियासत को भी तोड़ा। हिंदुस्तान के सामने भी झूठ बोल बोल के उनको भी और यहां जम्मू कश्मीर की आवाम को भी आपने बेवकूफ बना के एक्सप्लॉइट किया। इनके बच्चे इनसे छीने आपने, झूठ बोल बोल के उनको बोला कि जहाद फर्ज है, उनको बोला कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना ईमान का एक हिस्सा है। अगर उनके लिए ईमान का हिस्सा था, आपके लिए क्या था? आपने कौन सा अपना फर्ज दिया अपनी फैमिलीज में जो हिंदुस्तान के?
आप तो जेल गए, आप तो चीफ जस्टिस से एक लिंक पे, जहां मैं भी था, खुद कह रहे थे मैं बीमार हूं, मुझे किसी तरह से छोड़ दीजिए। जो ट्रेड यूनियन नहीं छोड़ा, मैं नहीं था। जो 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 भतीजे थे रूप साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देते हैं, हम एक बात नहीं करेंगे छोड़ के, अगर आपने छोड़ा कोई साहब को। क्या ये सच नहीं है? कौम को आप कहते हैं कि लड़ाई लड़ो, कौम को आप कहते हैं बंदूक उठाओ, कौम को कहते हैं कि पत्थर चलाओ, खुद कहते हैं जनाब हमें छोड़ दो। ये कंट्रडिक्शन है कोलफेल। इस पे मैं बाबर कादरी, आप मुझे डिक्लेयर करवा रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूं, आईबी का एजेंट हूं, मेरे खिलाफ हमले करवाते हो। 2 दफा आप लोगों ने मुझ पे हमले करवाए, मगर अब मिलिटेंट्स भी शायद ये जान चुके होंगे कि उनको भी एक्सप्लॉइट करने वाला कौन है, मिसलीड करने वाला कौन है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। बात से मैं यहां पे इख्तिताम करता हूं कि 12 सेशन में इलेक्शंस होने वाले हैं। मैं अपने दोस्तों को, मैंने अपने भाइयों को यह कहना है कि अभी भी एक्सप्लॉइटेशन पे चलोगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। खुदा रहा, मैं किसी के हक में कैंपेन नहीं करूंगा, मगर मैं कहता हूं ये इस्तेसाली अनासिर जो हैं इनका सपोर्ट मत करें। फॉर योर ओन सेक, अपने बच्चों के लिए आप भीख मांगने पे आप उतर आए। अब क्या होना है इससे ज्यादा? खत्म हो गया ये प्रोफेशन। इस प्रोफेशन की लाज रखने के लिए, अपने 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 आप की इज्जत रखने के लिए आप उन लोगों को सामने लाएं जो शरीफ हों, जो शरीफ नफ्स हों, जो सियासत भी जानते हों, वकालत भी जानते हों, जो बात करना भी जानते हों, जो किसी एजेंसी के टट्टू भी ना हो, उधर की या इधर की, जो जजेस के सामने आपकी बात कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपकी बात कर, जो न करते हो। Elect those people who are not gundas, who are not exploiters, who are the real lawyers. हमें खाली एक वकील को सपोर्ट करना है, हमें किसी गुंडे की जरूरत नहीं है, हमें किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। जो वकला हैं उनको सपोर्ट करें, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, जो लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हो। इसी रिक्वेस्ट के साथ एक अब चांस है, अपने आप को बदल दो, तभी आपकी तकदीर बदल सकती है और कौमी तकदीर भी बदल सकते हो। और दूसरा, दार साहब से और उनके जो जूनियर हैं नियाज साहब ने, जिन्होंने मुझे धमकियां भी दी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के उनको भी कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होगी। खुदा के लिए इस कौम को बख्शो, हम वकीलों को भी बख्शो। फिर भी अगर आप बात करना चाहते हो, मैं तैयार हूं। आप बताएं, मैं कोई साहब के घर जाना चाहता हूं, अकेले जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, आपके सामने बात करूंगा। अगर मुझ पे गलती चढ़ी, मैं माफी मांगूंगा, मगर अगर उन पे गलती आप फील करेंगे कि वो गलत है, तो फिर एटलीस्ट उनसे कहें कि गलत सिस्टम को प्रमोट मत करो। आप उम्र की उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे आपको अब बुर्दबारी और आपको खुदा को याद करने की जरूरत है। मत करो ऐसा, हमारी कौम के साथ मत खेलो, हमारी फ्यूचर के साथ मत खेलो, इन वकला के फ्यूचर के साथ मत खेलो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई थैंक यू ऑल हु लिसन मी पेशेंटली। आई एम हाईली ऑब्लाइज फॉर ऑल द पीपल हु गिव मी टाइम, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैंपेन चल रही थी कि बाबर कादरी यूं ही कोई साहब के खिलाफ है, फिजूल में कोई साहब के खिलाफ है। मैं तो पागल नहीं हूं। आप आए, बात करें, आप सुने किसकी गलती, क्या गलती है। बशीर अहमद जो है, ये क्या कहते हैं, सिद्दीक साहब डलगेट के, उनको सारा पता है। बेदार साहब को सारा पता है। वानी साहब जो ट्रेजरर थे 2 साल से कंटिन्यूस, से पूछे, एग्जीक्यूटिव्स को सारा पूछे। हालात ये हैं कि एग्जीक्यूटिव्स भी, एग्जीक्यूटिव मेंबर ये कि इनके चमचे होते हैं। मुझे बेदार साहब कल कह रहे थे कि बाहर तो वो आपका सपोर्ट करते हैं, फिर वहां पे कहते हैं नहीं जी, डरते हैं। ये डर की पॉलिटिक्स छोड़ दें, ये डर को भगा दें। ज्यादा से ज्यादा आप मारे जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। मगर ऊपर की जो लाठी है ना, जो कॉन्शियंस है ना, जो जमीर है, आपका जिंदा रहेगा। आई थैंक यू ऑल। आई कंक्लूड विद दिस थिंग। अस्सलाम वालेकुम।